Right, question. Calculate pH of the mixture. Calculate pH of the mixture. In bracket you write 25 ml of 0.1 molar NH4OH. 25 ml of 0.1 capital M of 0.1 capital M NH4OH plus 25 ml of 0.1 molar 0.1 capital M CH3COOH. Full stop. CH3COOH. Full stop. Given that Ka equals to, given that K subscript में Ka equals to 1.8 into 10 to the power minus 5, 1.8 into 10 to the power minus 5, and Kb equals to 1.8 into 10 to the power minus 5, 1.8 into 10 to the power minus 5. ठीक है, सॉल्व कर. Read the question. Calculate pH of the mixture of 0.1 molar NH4OH Very good. plus 25 ml of 0.1 molar. इसका ml नहीं दिया है, ऐसे कैसे? तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो. हाँ, तो plus 25 ml of 0.1 molar CH3COOH. CH3COOH है ना. तो ये weak base plus weak acid, K. weak acid plus weak base है. हाँ, तो Ka कितना दिया है? 1.8 into 10 to the power minus 5. हाँ, और Kb भी 1.8 into 10 to the 1.8 into 10 to the power. minus 5. अच्छा, क्या पूछा है? pH. pH का फॉर्मूला डायरेक्ट है ना. क्या था? 7 plus half pKa minus half pKb. दोनों तो सेम है ना, कट जाएगा ना, pK और pKb. तो आंसर क्या होगा? 7. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट, इन द फॉलोइंग which one has maximum degree of hydrolysis? In the following which one has maximum degree of hydrolysis? Bit 1 0.01 molar NH4Cl, bit 1 0.01 capital M NH4Cl, bit 2 0.1 molar NH4Cl, 0.1 M NH4Cl, bit 3 0.001 molar NH4Cl, 001 molar NH4Cl, and bit 4 सेम. ठीक है, सॉल्व करो. हाँ, रीड द क्वेश्चन. In the following, which one has maximum degree of hydrolysis? मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब हमें H पूछ रहा है. H इज एक्चुअली व्हाट? रूट ओवर ऑफ KH by C. याद करो, यही था ना. हाँ, क्या क्या दिया है? 0.01 molar NH4Cl, NH4Cl. देखो सॉल्ट सेम है हर जगह. हाँ, 0.1 molar 0.1 मोलर and 0.001 molar, एंड 0.001 मोलर NH4Cl. and fourth one is same. ये ऑप्शन है, ये B, ये C, एंड D इज गिवन सेम. तो सबसे देखो कंसंट्रेशन कम होने से हाइड्रोलाइसिस आता. किसका सबसे कम है? इसका 0.001. तो आंसर क्या होगा? C. और अगर यहाँ पे मैं तो समझ गया ना, बिकॉज H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ C. तो इफ कंसंट्रेशन इज हायर H is lower, concentration is lower, H is higher. तो लो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कम इसका था, तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा? सबसे ज्यादा. समझ गए? तो इसका फिर इसका. क्लियर? राइट इट डाउन. नेक्स्ट हेडिंग यू गिव बफर सॉल्यूशंस. Buffer solutions. Write a solution that resists change in pH. A solution that resists change in pH value. Change in pH value upon addition of very small amount. Upon addition of very small amount of strong acid or base, very small amount of strong acid or base
or when solution is diluted is called buffer solution. नेक्स्ट उसके बाद राइट बफर कैपेसिटी राइट द कैपेसिटी ऑफ अ solution to resist alteration in pH the capacity of a solution to resist alteration in pH is called buffer capacity. Next you write buffer action. Buffer action में लिखो the mechanism of buffer solution is called buffer action. The mechanism of buffer solution is called buffer action. The mechanism of buffer solution is called buffer action. Full stop. Okay. Next you write types of buffer solutions. First one you write simple buffer solution. Bit 2 mixed buffer solution. Simple buffer solution. Bit 2 mixed buffer solution. तो पहला वाला लिखते हैं पहले सिंपल बफर सॉल्यूशन. हेडिंग यू गिव सिंपल बफर सॉल्यूशन SBS. Simple buffer solution. Right, a salt of weak acid and weak base in water. A salt of weak acid and weak base in water. Example you write CH3COONH4 CH3COONH4 bit 2 HCOONH4 HCOONH4 bit 3 AgCN bit 4 NH4CN bit 4 है NH4CN. ये सब ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग यू गिव बफर एक्शन ऑफ सिंपल buffer solution. Buffer action of simple buffer solution. ठीक है. So मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको तुम्हें. So we are talking about simple buffer solution. Simple buffer solution. मैंने क्या बोला? Buffer क्या होता है? Buffer is a solution which resists change in pH. मतलब मान लो एक बफर सॉल्यूशन है, मैं उसमें थोड़ा सा अगर एसिड डालूं, एसिड थोड़ा सा डालने से क्या हो जाना चाहिए? एसिडिक बट नहीं हो रहा है, रेजिस्ट कर दे रहा है. मतलब एसिड डालने के बावजूद वो एसिडिक नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ? बफर है, थोड़ा सा पेस्ट डाला, बट ऐसा नहीं कि पूरा डाल दोगे 100 लीटर और बोलोगे नहीं होगा एसिड. ऐसे होने से तो उसी को लोग यूज करेंगे मुंह में डाल के, ठीक है ना, क्रीम बनेगा लड़कियों को उससे. अगर एसिड डालने से कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं है. थोड़ा बहुत माइल्ड चेंजेस को वो रेजिस्ट कर सकता है. सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा ब्लड. बॉडी में जो ब्लड होता है, पीएच लेवल अप डाउन होता है, थोड़ा भी एसिड प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड, फिर भी हम तो मर नहीं जाते. ब्लड थोड़ा सा बैलेंस कर लेता है अपने जितना लेवल तक हो. थोड़ा बेसिक बन गया, अल्कालाइन ब्लड हो गया, फिर भी ब्लड कंट्रोल कर लेता है. मतलब एनी मिनिमम चेंजेस को रेजिस्ट कर पाने से उसको क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट्स चेंज इन pH. If a small amount of acid is also added, it does not change. थोड़ा सा बेस भी डालने से does not change. तो कैसे होगा बेसिक बफर? तो बेसिक बफर में मैंने क्या बताया? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस होना चाहिए. ठीक है, इसी के बारे में भी आज क्लास चलते टाइम पूछ लूंगा, ध्यान से देखते रहो सब. तो मैंने जो बताया अभी CH3CONH4 ये बताया कि नहीं? मैंने CH3CONH4 मैंने बताया, ये भी हो सकता है.
फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेनेशन यहां पे देता हूं. सपोज सम HCl इज एडेड, थोड़ा सा HCl को मैंने ऐड किया, बट सबसे उससे पहले अगर ये मेरा बफर है, सॉल्ट तो तुरंत आयनाइज होता है ना. सॉल्ट तो डिपेंड नहीं करता वीक है स्ट्रांग है. सॉल्ट के लिए कोई वीक स्ट्रांग नहीं, कोई भी सॉल्ट लो वो क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा, है ना. तो सॉल्ट तो इमीडिएटली आयनाइज होगा तो क्या फॉर्म करेगा, CH3CO- प्लस NH4 प्लस. सॉल्ट ऑलरेडी आयनाइज हो चुका है. अभी सपोज सम HCl इज एडेड, तो HCl डालते ही क्या फॉर्म करेगा, H प्लस Cl माइनस. तो ये H प्लस कहाँ पे आया, सोल्यूशन में आया कि नहीं, ये H प्लस सोल्यूशन में आया. तो बट ये सॉल्ट का जो ये बना है CH3CO-, दिस H प्लस दिस इमीडिएटली किसके साथ रिएक्ट करेगा, reacts with CH3CO-. तो H प्लस CH3CO- करेंगे तो क्या फॉर्म हो गया, CH3COH. CH3COH क्या है, वीक एसिड. क्या है, वीक एसिड विच डू नॉट आयनाइज. समझ में आया. मतलब क्या हुआ, HCl से जो H प्लस आएगा, सोचो 5 HCl मैंने डाल दिया तो 5 H प्लस आए. ये 5 H प्लस तुरंत ये सॉल्ट से जो आया होगा CH3CO- उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा. रिएक्ट करते ही क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3COH. बट CH3COH बनने के बाद वो तो वीक है ना, वो सॉल्ट भी नहीं है और वो वीक एसिड है. वीक एसिड डिसोसिएट करता है क्या, तो इससे और H प्लस आएगा क्या, नहीं करेगा. अंडरस्टूड. जो H प्लस थे उनको वो खा गया और फिर अभी वो वापस वो H प्लस देगा नहीं, बिकॉज इट हैज फॉर्म्ड अ वीक एसिड. वीक एसिड डू नॉट आयनाइज. तो H प्लस को कंट्रोल कर सकते हैं आराम से. सपोज मैं यहाँ पे सम NaOH इज एडेड. सपोज सम NaOH इज एडेड, तो NaOH का काम क्या है, तुरंत क्या देगा, इट विल गिव Na प्लस OH माइनस. तो तुरंत ये OH माइनस इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ whom, किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ NH4 प्लस, है ना. तो NH4 प्लस OH माइनस तुरंत क्या देगा, NH4OH. ये क्या है, इट इज अ वीक बेस एंड वीक बेस डू नॉट डिसोसिएट, एंड वीक बेस डू नॉट क्या डिसोसिएट. तो जो H प्लस वो खा गया OH माइनस को, वो अभी वापस देगा क्या, वो दे नहीं रहा है. इसका मतलब सॉल्यूशन में जो भी एक्स्ट्रा OH माइनस आया उसको ये कंज्यूम कर जा रहा है, और NH4OH बनने के बाद वो खुद और डिसोसिएट नहीं कर रहा है. तो OH माइनस गायब दिखेगा कि नहीं आने के बावजूद. तो थोड़ा बहुत H प्लस डालने से भी वो कंट्रोल कर लेगा, थोड़ा बहुत OH माइनस डालने से भी वो कंट्रोल कर लेगा. तो दैट मींस व्हाट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज अ सिंपल बफर सॉल्यूशन. और अगर सिंपल बेस वीक एसिड और वीक बेस से आया है, सिंपल बफर सॉल्यूशन में pH निकालना भी आसान होगा. क्यों आसान है, डायरेक्ट फार्मूला क्या है, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb. बहुत सारे किताबों में ना थोड़ा अलग होता है. क्या अलग होता है, pH को लिखा रहता है हाफ इंटू pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb. हाफ pKw क्यों लिखते हैं, क्योंकि pKw टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है ना. अगर टेम्परेचर बढ़ा तो Kw का वैल्यू क्या होता है, घटता है. क्या होता है, बढ़ता है. टेम्परेचर -12 होता था. हाँ कब होता था, हाँ टेम्परेचर -12 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर -14 और लेस. अंडरस्टूड ना. तो उसी हिसाब से ठीक है ना, गर्म पानी को थोड़ा एसिडिक माना जाता था, तो इस हिसाब से फॉर्मूला लिखा जाता है कि अगर टेम्परेचर -12 है तो वहां पे हाफ इंटू 12 6 हो जाएगा. क्लियर. यहाँ पे मैं भी भूल जाऊँ, जैसे कल एक जगह भूल रहे थे. ठीक है, राइट इट डाउन. नेक्स्ट गिव हेडिंग, next give heading mixed buffer solutions. Next all of you give heading mixed buffer solutions. In mixed buffer solution write bit A acidic buffer solutions. Bit A is your acidic buffer solutions. Right, an acidic buffer consists of a solution of
an acidic buffer solution consists of a solution of weak acid and its salt with strong base. Weak acid and its salt with strong base. Okay, weak acid and its salt with strong base. Example you write acetic acid plus sodium acetate. Acetic acid plus sodium acetate. Okay, acetic acid plus sodium acetate. Second, bit 2, HCN plus KCN. HCN plus KCN. Third, H2CO3. H2CO3 plus NaHCO3. Carbonic acid plus sodium bicarbonate. NaHCO3. Okay, ये 3 लिखे हो ना, ठीक है, I'll explain you one all. So next we are going to study about mixed buffer solution. ठीक है, mixed buffer solution are of two types, acidic buffer and basic buffer solution. तो ये दो तरह के होंगे, acidic buffer solution and other is basic buffer solution. But first we will study about acidic buffer solution. ठीक है ना? So acidic buffer solution क्या होता है देखो, you need to understand this, काफी डेप्थ में समझोगे तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ, सिंपल है, ये ध्यान रखना मेन है, मिक्सचर ऑफ क्या है, वीक एसिड, ठीक, प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों होना चाहिए, खाली वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. मैंने एग्जांपल कुछ दिए थे. वीक एसिड कौन हो सकता है, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस में कैटायन कौन हो सकता है, Na. तो सोडियम एसिटेट मैंने बोला CH3COO माइनस Na प्लस, ये सॉल्ट हुआ कि नहीं. या तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन सियानेट HCN प्लस उसका सॉल्ट क्या हो सकता है NaCN. या तो मैंने क्या बोला, कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस सॉल्ट क्या हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है कि नहीं, सॉल्ट ही तो है ना ये सारे. ये वाला स्पेशल केस है, इसको याद रखना, ये ब्लड में होता है, ये पता था, ये ब्लड में होता है क्योंकि ब्लड में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, जो ब्लड शुगर. अभी देखो तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कुछ होता नहीं है बिकॉज दैट कंटेन्स व्हाट, कार्बोनिक एसिड, दैट इज नॉट हार्मफुल टू यू, है ना. तो ब्लड में भी वही होता है, कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम आयंस का कमी हो जाने से भी तुम्हारा क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल जो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस वन. ठीक है, बफर नहीं हो पाता तब अच्छे से, तबियत बिगड़ता है. ठीक है, एनीवेज, सो मैं आई टेक वन ऑफ द एग्जांपल एंड आई सॉल्व. ठीक है, मैं इसको एग्जांपल के हिसाब से लेता हूँ क्योंकि ये मोस्ट यूज्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, मोस्ट यूज्ड. आएगा भी तो क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा. ठीक है, तो अब इसमें काम कैसे करता है, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन, ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन. ठीक, तो सबसे पहला वहां पे क्या क्या है, CH3COOH जो वीकली आयोनाइज करेगा. ये वाला क्या होगा, वीकली आयोनाइजेस, क्योंकि क्या है ये वीक एसिड है तो ये आयोनाइज ही नहीं होगा. बट दूसरा वाला क्या है, सॉल्ट है. सॉल्ट क्या करता है, फटाफट आयोनाइज हो जाता है कि नहीं. सॉल्ट क्या करता है, इमीडिएटली, ये वाला क्या होगा, इमीडिएटली ionizes and forms what, CH3COO minus plus Na plus, है कि नहीं. ये तुरंत करेगा, वो नहीं कर रहा होगा. सोचो अभी एसिडिक बफर सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे केसेस लेता हूँ. केस 1, सपोज few drops of H plus added. few drops of H plus added मतलब क्या डाले, एसिड. तो मैं मान लेता हूँ few drops of HCl added लिख दूंगे और बेटर है, HCl added. तो HCl क्या देगा, H plus plus Cl minus. तो ये जो H plus आया है वो किसके साथ रिएक्ट होने के लिए बेचैन होगा, इसके साथ या इसके साथ, सेकेंड वाले के साथ.
क्योंकि यहाँ तो ये आया ही नहीं होगा क्योंकि ये वीकली आयोनाइज करता है ना, तो बहुत कम होंगे। सेकेंड वाले में HCH3CO माइनस सफिशिएंट होगा, ये है कि नहीं? तो दिस नींद आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ, जैसे तो दिस H प्लस reacts with CH3CO माइनस, तो ये H प्लस CH3CO माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? इट फॉर्म्स CH3COOH, जो कि खुद क्या है? वीक एसिड एंड डू नॉट व्हाट डिसोसिएट और आयोनाइज। तो H प्लस और दिखेगा क्या? जो आया वो ले लिया उसको, CH3CO माइनस रिएक्ट हो गया, CH3COH हो गया, तो और H प्लस रहा सोल्यूशन में, नहीं काउंटर हो गया, है कि नहीं? केस 2, सपोज few drops of क्या NaOH, कोई बेस एडेड, ठीक है ना? अगर कोई बेस को हम लोग ऐड किए हैं तो क्या होगा जरा ध्यान से देखो, ठीक है? अभी ये तो आयोनाइज हुआ नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिखा हूं वीकली आयोनाइजेस, ये अभी आयोनाइज हुआ क्या? वीकली आयोनाइजेस। तो दिस वन यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जो NaOH है, तो यहाँ से जो ये है ये तुरंत किसके पास चला जाएगा? ठीक है ना? अप्रोचेस CH3COOH, है ना? क्योंकि ये बेस है, बेस किसके पास भागेगा? एसिड के पास। तो देख लो क्या होता है, NaOH plus CH3COOH, it will form what? CH3CO minus Na plus, और इसका H और इसका OH मिक्स होकर क्या फॉर्म हो जाएगा? H2O। तो इसको क्या बोलेंगे? अनआयोनाइजेबल वाटर। तो जो OH माइनस भी आया वो भी काउंटर हो गया, समझ गए? सॉल्ट से जो आया होगा CH3CO माइनस, वो किसको काउंटर किया? एसिड का H प्लस को। और जो बेस से OH माइनस आया उसको कौन काउंटर किया? एसिड, एसिड ने काउंटर किया बाय फॉर्मिंग अनआयोनाइजेबल वाटर। तो यहाँ पे बेस भी गायब, OH माइनस भी गायब हो गया और H प्लस भी। और ये जो फॉर्मूला है ये रेडी किसके लिए? फर्दर अगर एसिड कभी डाला गया उसको काउंटर करने के लिए ये रेडी है। समझ पा रहे हो या कोई डाउट? पक्का? कैसे काउंटर हुआ, बफर एक्शन समझ में आ गया? एसिड डालने से क्या होता है, बेस डालने से क्या होता है, पूछ देता है एंट्रेंस में कभी। इफ एसिड इज एडेड हु काउंटर्स इट? क्या लिखोगे? द एनायंस फ्रॉम द सॉल्ट काउंटर्स इट। एनायन फ्रॉम द सॉल्ट काउंटर कर रहा है, तो मैकेनिज्म समझना इसलिए जरूरी है कि कौन काउंटर कर रहा है। तो जानो, इफ बेस इज एडेड हु काउंटर्स इट? द एसिड काउंटर्स इट टू फॉर्म अनआयोनाइजेबल वाटर। क्लियर? अभी यहाँ पे pH भी निकालना है। यहाँ तो वीक एसिड वीक बेस नहीं था ना कि डायरेक्ट लिख देंगे कि pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pK भी, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ के लिए क्या होगा, डिराइव करेंगे, जगह नहीं है खाली करेंगे और डिराइव करेंगे। ऑन करो, कर दियो। सो नाउ वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर pH इन दिस केस, ठीक है? सो मैं इसी सॉल्ट को एग्जांपल लेके बता देता हूँ, है कि नहीं? सो अभी यहाँ पे दो चीज होगा, ये क्या है, मेरा सॉल्ट एंड ये मेरा एसिड, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ वापस, CH3COO माइनस COH गिव्स राइज टू क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये होगा कि नहीं? और एक क्या था, CH3CONA गिव्स राइज टू CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करवा सकता था HA, और इसको मैं क्या ले लेता, BA, HA और BA लेता है ना? वैसे भी लेके सॉल्व करा सकता, तो वैसे बताऊं किस में बताऊं, एज यू विश आई विल एक्सप्लेन, ठीक है ना? HA में लेके बता देता हूं, इसको लेके क्यों बताए ना, बहुत बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए सैंपल केस। तो पहला मैं ले लेता हूं वीक एसिड, माय वीक एसिड इज व्हाट, HA, so it will form what, H plus plus A minus, ठीक है? So Ka को what I can write, H plus A minus by HA, है ना? बट ये वीकली आयनाइजेबल है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, pH के लिए क्या चाहिए, H प्लस। तो H प्लस इज नथिंग बट Ka into HA by A minus, ठीक है? सो दिस इज माय वीक एसिड। और एक तो क्या चीज था, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी और एक तो कौन था, सॉल्ट था।
सॉल्ट ऑफ क्या था, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सो वो क्या होगा AB या BA ले लो ना, कैटायन पहले रहता है ना, तो BA, सो B प्लस A माइनस, ये वाला वीक एसिड है बट ये तो सॉल्ट है ना, सॉल्ट क्या होता है आयोनाइजेबल, तो दिस वन इज व्हाट आयोनाइजेबल, तो यहाँ पे जितना होगा सॉल्ट वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आयोनाइज, समझ में आ रहा है कि नहीं, 100% सॉल्ट विल गेट आयोनाइज, ठीक। अभी मैं pH अगर निकालूं, pH क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या है Ka इंटू HA बाई A माइनस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग Ka, तो नेगेटिव लॉग Ka मल्टीप्लाई है तो प्लस होता है बट माइनस सामने है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव लॉग HA, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, नहीं समझ पा रहे हो, देखो माइनस को बाहर रखो, यहाँ पे लिखते तो क्या देखते हैं log Ka प्लस log HA माइनस log A माइनस, है कि नहीं, या तो मैं ऐसे ही लिख देता ना, मान लो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, माइनस रखा log HA बाई A माइनस, अब कोई दिक्कत, अब ठीक है कि नहीं, तो मैं माइनस को अगर यूज कर दूं तो दिस इज नेगेटिव लॉग K क्या होता है pKa, माइनस को अगर प्लस करूं तो ये वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस log A माइनस बाई HA, यही आया ना, सो दैट इंप्लाइज pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log, ये ध्यान थोड़ा दो, ये A माइनस आएगा कहां से, A माइनस सॉल्ट से आ रहा है, क्योंकि वो तो 100% आयोनाइज नहीं हो रहा ना, वो तो थोड़ा बहुत आयोनाइज हो रहा है, HA तो आयोनाइज भी नहीं हो रहा है ढंग से, तो A माइनस HA से बहुत कम आया होगा 1-2, सॉल्ट से आया होगा 100, तो 100 प्लस 1 या 2 खाने से क्या होता है 100 ही तो होता है, और ये तो 100 अगर है तो पूरा 100 का 100 आयोनाइज हो जाएगा, तो A माइनस का कंसंट्रेशन का मतलब क्या है BA का कंसंट्रेशन, लिखते हो ना 100 0 0, थोड़े टाइम के बाद 0 100 100, तो इसका जो कंसंट्रेशन उसका भी वही कंसंट्रेशन होगा ना, तो A माइनस का कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सॉल्ट, HA कौन था एसिड, तो एसिड का कंसंट्रेशन, तो याद रखो साउथ अफ्रीका, टेक्निक इसका क्या है साउथ अफ्रीका, तो एसिडिक बफर अगर है, ऑब्वियसली एसिडिक बफर में वीक एसिड है, तो pK तो ऑब्वियस सा बात जो आएगा, तो pH इज pKa प्लस log साउथ अफ्रीका सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी दे रखा होगा 0.1 मोलर ऑफ CH3CONA reacts with 0.001 मोलर ऑफ CH3COCOH, तो सॉल्ट का भी पता है 0.1 और 0.001, एंड pK मतलब Ka तुम्हें दिया होगा, तो फटाफट फॉर्मूला से आ जाएगा ना pH, सिंपल होने से pH क्या था 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pK, एसिडिक होने से ऐसा है, अभी बेसिक समझ लेंगे, लिखो फटाफट, राइट, heading you give idea about pH range of acidic buffer solution, idea about pH range of acidic buffer solution, right, next maximum, इसी के अंडर राइट, maximum buffer action will be only, maximum buffer action will be only when the ratio of concentration of acid and salt is 1, when the ratio of concentration of acid and salt is 1, full stop. So for maximum buffer action pH is equals to pKa, pH is equals to pKa, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इन एसिडिक बफर क्या हो सकता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू एसिड जो है ना, उसका रेंज कैन बी फ्रॉम 0.1 टू 10, उसके ज्यादा नहीं हो सकता, यही उसका रेंज होता है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू एसिड अगर 0.1 होता है, इफ सॉल्ट सबसे मिनिमम जो सॉल्ट बाय एसिड अगर 0.1 होता तो pH क्या होता pKa
प्लस लॉग 0.1 होता है। 0.1 क्या होता है 10 टू द पावर -1, तो -1 आगे आता है, तो pKa -1 log 10 है ना। log 10 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या है pKa -1 pH इज इक्वल्स टू, ये मिनिमम pH इतना हो सकता है। एंड इफ सॉल्ट बाय एसिड को अपन 10 ले लें तो pH क्या हो जाएगा pKa प्लस log 10, जो कि क्या हो जाएगा pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस क्या 1। तो रेंज क्या हो जाएगा pH का, pH का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है pKa प्लस 1। तो तुम ये भी ध्यान रख सकते हो, अगर एसिडिक बफर है ऑप्शन में तुम्हें दिया होगा पहले का pKa तुम्हें पता है, सोचो दिया होगा कि 7 और ऑप्शंस में दिया होगा 9, 7.5, 4, 3, बिना सॉल्व किए क्या करो 7.5। अगर तुम्हें दे दिया है पहले से pKa 6 है, ठीक है, और एसिडिक बफर पढ़ के जान चुके हो, क्वेश्चन में दिया होगा ना कौन कौन है, और ऑप्शंस में दिया व्हाट इज द फाइनल pH, ऑप्शन ए में 3, 6 से 3 का दूरी है, 10 4 का दूरी, 8 2 का दूरी और एक 6.5। ऑब्वियसली +1 मैक्सिमम हो सकता है तो -1 हो सकता है। तो अगर pKa तुम्हारा 6 है तो 5 से 7 के अंदर ही हो सकता है जो भी होना है, उसके बियॉन्ड वाला ऑप्शन मतलब बिना सॉल्व के डायरेक्ट आंसर क्या कर दोगे 6.5, यही समझ गए ना। रेंज एक ऊपर से नीचे तक हो सकता है, तो लाइज फ्रॉम pKa +1 से pKa -1, तो दिस इज द एक्चुअल रेंज। याद रहा, रेंज याद रहा, और जो मैंने बताया तुम्हें अभी जो पॉइंट लिखे वो भी समझ गए ना, या उसको समझाना पड़ेगा। व्हाट डिड यू राइट राइट नाउ, मैक्सिमम बफर कब होता है जब pH इज इक्वल्स टू pKa, कुछ भी एडिशनल ना है, एंड रेशियो शुड बी व्हाट 1, मतलब जितना सॉल्ट है उतना ही एसिड, तो मैक्सिमम बफर एक्शन होगा, मतलब मैक्सिमम हद तक वो क्या कर सकता है कंट्रोल। नहीं समझ पाए ना, मुझे पता था कोई भी नहीं समझा हो, कितने समझे उस स्टेटमेंट का मतलब, पॉज करो तो समझाएगा। अभी देखो एवरीवन इज हैविंग अ डाउट मैक्सिमम बफर पे क्या होगा। मैक्सिमम बफर में मैंने बोल भी दिया सॉल्ट बाय एसिड इज 1 और सब मान भी लिए खुशी से, तो pH क्या हो गया pKa प्लस log 1, तो log 1 तो 0 होता है, तो pH इक्वल्स टू क्या होगा pKa। इसका क्लियर मतलब क्या है, नॉर्मली कुछ बाहर का एडिशनल सोर्स डालने से पहले हमारे पास क्या था वीक एसिड था एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पानी नहीं है, सिर्फ वीक एसिड है, तो वीक एसिड का pH क्या होता है pK। अभी बाहर से कुछ डालने के बाद भी मेरा pH क्या आ रहा है pK। इसका क्लियर मतलब क्या है मैक्सिमम बफर हुआ है भाई, जितना भी बाहर से डाले हो उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है, तभी तो pH में बदलाव ही नहीं आ रहा है। कुछ एडिशनल डालने से पहले मेरे पास क्या था वीक एसिड और उसका सॉल्ट था, तो उसको कोई भी पूछने से सॉल्ट को तो कोई देखेगा नहीं, डायरेक्ट वीक एसिड अच्छा डायरेक्टली pK ही उसका pH बोल देते थे। अभी मैंने बाहर से इधर उधर का सब डाला, फिर भी मेरे आंसर में मैं देख रहा हूँ pK ही यार, इसका मतलब क्या है जितना भी मैंने डाला वो सारा का सारा क्या है पूरा न्यूट्रलाइज हुआ है, इसका मतलब मैक्सिमम बफर एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ गए नाउ द लॉजिक, उस स्टेटमेंट का मतलब क्लियर, बोल वही रहे थे, बस तुम लोग थोड़े कंफ्यूज थे अपने स्टेटमेंट से। न्यूट्रलाइज हो या आयोनाइज ही नहीं हो, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, काउंटर हो गया ना। अगर OH माइनस है तो कैसे काउंटर होता है मैंने बताया, अगर H प्लस है तो कैसे काउंटर होता है, तो दे गॉट काउंटर्ड, व्हाटएवर एडिशनल आई एडेड, एडिटरेशंस जितने भी थे एवरीथिंग गॉट काउंटेड। क्लियर, नेक्स्ट ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग बेसिक बफर सॉल्यूशन। Basic buffer solution, right? It consists of a weak base. It consists of a weak base and its salt with strong acid. It consists of a weak base and its salt with a strong acid. उसके बाद राइट एग्जाम्पल्स एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, देन यू राइट एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल में लिखो NH4OH प्लस NH4Cl, NH4OH प्लस NH4Cl बिट 2, और क्या जरूरी
एग्जांपल खुद ही लिख देना होते हैं, ठीक है, फाइन, आई एक्सप्लेन, ठीक है। सो इन केस ऑफ बेसिक बफर व्हाट डिड आई से, बेसिक शब्द से पता चल रहा है वीक बेस है, क्या है, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, यही है, ठीक है। वीक बेस ले लेता हूँ, एक एग्जांपल तो हम लोग ले ही सकते हैं, सपोज NH4OH प्लस उसका सॉल्ट है NH4Cl, तो NH4OH तो उतना आयोनाइज नहीं होगा, वीक बेस है, तो क्या लिखूंगा, फेंटली आयोनाइजेस, NH4Cl कंप्लीटली आयोनाइजेस, सॉल्ट है ना, so NH4Cl can be written as NH4 plus Cl minus, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ few drops of HCl added, तो यहाँ पे buffer action, this is your buffer action, suppose few drops of HCl added, HCl मतलब कौन आएगा, H plus किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोचो, इनमें से HCl H plus किसके साथ ऐड करेगा, Cl के साथ नहीं, H plus किसके साथ ऐड करेगा, NH4OH है किसके साथ, पूरा HCl चला जाएगा NH4OH के पास, वेरी गुड, क्योंकि एसिड है, एसिड प्लस बेस, हाँ, तो HCl प्लस लिख देता हूँ अप्रोचेस बेस, तो HCl प्लस NH4OH इट फॉर्म्स व्हाट, NH4Cl जो कि खुद सॉल्ट है, जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड H2O, OH और H मिलके, तो ये क्या लिख दूंगा, अनआयोनाइजेबल वाटर, तो H प्लस यहीं पे काउंटर हो गया ना, हो गया कि नहीं, और ये सॉल्ट बचा, सॉल्ट से तो कुछ घंटा नहीं होना है हम लोग। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ OH माइनस एडेड, है ना, OH माइनस अगर ऐड करेंगे तो ये OH माइनस किसके पास अप्रोच करेगा, NH4 के पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्रोचेस NH4 प्लस, ठीक है, तो NH4 प्लस के साथ अगर OH माइनस ऐड कर देंगे इट फॉर्म्स व्हाट, NH4OH, तो मैं लिख दूंगा ये वीक बेस है, वीक बेस एंड डू नॉट आयोनाइज, इसका क्लियर मतलब क्या है, जो OH माइनस कंज्यूम हो गया वो वापस और सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है, तो OH माइनस भी काउंटर हो गया, H प्लस भी हुआ, OH माइनस भी हुआ, समझ गए। अब इसका अगर फॉर्मूला डिराइव करना है तो आई हैव टू टेक बोथ थिंग्स, वीक बेस माने क्या, BOH, तो BOH विल फॉर्म व्हाट, B प्लस एंड OH माइनस, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, KB इज व्हाट, B प्लस OH माइनस बाय BOH, तो हमें क्या चाहिए, OH माइनस मिलेगा तो ऑटोमेटिकली H प्लस भी पता चल जाएगा, तो OH माइनस इज KB into BOH by B प्लस, है ना, अंडरस्टैंडिंग, तो ये मेरा क्या है, OH माइनस है, तो अभी ये तो मैंने किसके लिए लिखा था, वीक बेस के लिए था, अब किसको लिखना है, सॉल्ट के लिए लिखना है, ठीक है, नाउ फॉर द सॉल्ट, सॉल्ट इज व्हाट, NH4Cl, या तो यहाँ तो हम लोग बेसिक केस ले रहे हैं ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, BX, माय सॉल्ट इज व्हाट, BX, या तो जो ट्रेडिशनल है BA, सो इट फॉर्म्स व्हाट, B प्लस A माइनस, और ये सॉल्ट है 100% आयोनाइज होगा, मतलब अगर ये 100 था 0 थोड़ा टाइम के बाद 0 100, मतलब जितना कंसंट्रेशन सॉल्ट का है उतना ही कंसंट्रेशन किसका होगा, B प्लस, सो नाउ लेट मी फाइंड POH, POH is what, negative log of OH minus, so negative log of KB BOH B plus, so this is what, negative log of KB पहले लिख दिया मैंने, POH is, फिर क्या रहेगा, माइनस log BOH by क्या, B plus, अब माइनस को यूज कर लो, तो दिस इज व्हाट, PKB प्लस, उसको उल्टा कर दो, log B प्लस बाई BOH, तो B प्लस कहाँ से आ रहा है हम लोग का, उधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, बट वहां से एक आध, क्योंकि वीक है, सॉल्ट है, दम भर के, यहाँ से 100 और वहां से एक आध, मतलब 100 ही रहे,
तो क्या लिखेंगे POH PKB प्लस log salt by base, ठीक है ना। साउथ याद रखो और बाकी बेस, समझ गए। वहाँ साउथ अफ्रीका है तो यहाँ, वहाँ एसिड तो यहाँ ऑब्वियसली बेस आएगा, बेसिक बफर है तो ऑब्वियसली बेस को यूज करेगा। PKB है यहाँ पर POH आ रहा है, ये ध्यान में रखो। pH पूछेगा तो 14 माइनस POH। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर फंडामेंटल? तो दिस इज ऑल अबाउट मिक्स्ड बफर, सिंपल बफर। सिंपल में था 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। एसिडिक बफर pH इज इक्वल्स टू pKa plus log salt by acid concentration, and in basic buffer pH is what? 14 minus pKb minus log salt by base, और अगर pOH पूछे तो डायरेक्टली 7 plus log salt by base। clear? So this is all about today. We'll continue with solubility product next class. Almost goes the same as in last case। तो यहाँ पे रेंज इधर ले और बता देते हैं रेंज के बारे में भी। हाँ, तो फॉर रेंज ऑल ऑफ अस नो द सॉल्ट बाय बेस कंसंट्रेशन जो है दिस कैन लाई फ्रॉम 0.1 to 10 तक, ठीक है ना। 0.1 to 10 तक अगर ले सकते हैं तो POH कैन बिकम व्हाट? PKB प्लस माइनस 1। 10 लेने से 1, 0.1 लेने से माइनस 1, यहाँ तक हो सकता है। दिस इज अ रेंज। तो POH का जो रेंज होगा दैट विल बी फ्रॉम PKB प्लस 1 टू PKB माइनस 1। तो ये अपना क्या है? रेंज। एंड मैक्सिमम बफर एक्शन कब होगा? व्हेन सॉल्ट बाय बेस कंसंट्रेशन इज हाउ मच? 1। दिस इज हाउ मच? 1। तो वहां पे POH क्या हो जाएगा? PKB प्लस log 1, क्योंकि सॉल्ट बाय बेस 1 है, log 1 इज व्हाट? 0। So whenever POH is equals to PKB, maximum buffer solution is observed. Entrance में बहुत बार देता है, सारा रामायण लिखेगा एंड बोलेगा कि it was a condition of maximum buffer. Find the pH. Directly क्या कर देते PK या find the POH. Directly क्या करते PKB. KB दिया होगा, सीधा तुम्हें करना है। सोचो KB दिया होगा 10 to the power -4, तो POH will be what? 4। PKB करोगे तो क्या आएगा? 4। क्वेश्चन मत पूछा होगा pH, तो क्या होगा? 10, और वो ऑप्शन सी में होगा। और 4 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में क्या होगा? 4 प्लस 1 जो लॉग सॉल्ट प्लस ये करोगे, और ऑप्शन डी में 6। ठीक है, तो इस तरह का सारा रहेगा, उसमें से तुम्हें ध्यान से करना है। क्लियर?